Hello students, in this video we will learn about the division of two integers and the properties of division for integers. The first one we will learn division of two integers with the same sign and division of integer with different sign. We will divide the integers in the same way regardless of their sign. If their sign is same, then there will be a positive sign. In case division of integer with different sign means sign is different, then there is negative sign after dividing. We will divide the integers in same way but the sign will be negative. Means जे sign दोनों दे same है तो अपना plus आंसर आना है, divide उमें करना integers नू. अगर sign different है तो आप डिवाइड करन तो बाद की लगा देना है, माइनस का साइन लगा देना है. आई एम गिविंग यू एग्जांपल लाइक हियर इज 20 डिवाइडेड बाय 5 तो आप डिवाइड किया इनू डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 4. दोनों दे साइन सेम है 20 एंड 5 दे दोनों दे पॉजिटिव है तो अपना प्लस आंसर आ रहा है. सिमिलरली -15 डिवाइडेड बाय -3 आप डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 5 लगावांगे. दोनों दे साइन सेम है तो पॉजिटिव आंसर आना है. सिमिलरली इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, वी विल डिवाइड दीज, द आंसर इज 3. डिवाइड करने तो बाद 3 आया क्योंकि ओपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा. हेयर ऑल्सो डिवाइड करने तो बाद 5 आ रहा है, साइन ओपोजिट है तो अपना आंसर माइनस जाएगा. नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी विच डजंट होल्ड it doesn't hold in the case of division. For integers, like we are taking two integers 5 and 3. If we are dividing 5 divided by 3, it doesn't give you any integer as this is a fractional form. So by dividing two integers we can't get compulsorily any integer. It could be but not always. Means हमेशा डिवाइड करन ते तुहानू इंटीजर मिले नहीं हो सकता. कुछ केसेस च हो सकता है, कुछ केसेस नहीं हो सकता. किसी भी इंटीजर ए नू ए नाल डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर 1 आता है. सेम नंबर नू सेम नंबर नाल डिवाइड करांगे 1 आंसर आएगा. सेम एज फॉर 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर वी गेट 0. किसी भी इंटीजर नू 0 नू किसी भी इंटीजर नाल डिवाइड करांगे तो 0 आना है. बट किसी भी इंटीजर नू 0 नाल डिवाइड करके नॉट डिफाइन आता है क्योंकि 0 नाल आप डिवाइड नहीं कर सकते. एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, this also doesn't hold for division. Means a divided by not equal to b divided by a. Like if I am dividing 15 divided by 5, it gives me 3. If I divide 5 divided by 15, the 5 upon 15 means it's 1 by 3. Both are not equal. 3 and 1 by 3 are not equal. So commutative property doesn't hold in case of division. Similarly, associative property. Associative property also doesn't hold. means a divided by
B divided by C is not equal to A divided by B, then divided by C. It doesn't hold. Next is I'm solving exercise 1.4. First sum is evaluate 76 divided by 19. Here are both positive numbers. We will just divide the numbers and I'm getting 76 divided by 19, 4 with positive sign as both are positive. For second part, both are negative integers of same sign. दोनों same sign दे आप divide करांगे पहला 13 दोनों same sign दे तो अपना आंसर भी किया हुआ positive plus चाहुआ साइन. Next I am taking fourth part. 125 divided by minus 25. 125 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 25 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 5. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾइन एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अपना साइन क्या हुआ नेगेटिव आऊगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट 0 डिवाइडेड बाय -5. किसी भी नंबर 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 0. Next is sixth part -15 divided by 15. 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ डिवाइड करांगे आंसर 1. दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो अपना साइन होगा नेगेटिव. नेक्स्ट इज सेकेंड सम. राइट ऑल द even numbers, even integers between -18 and 0. Even numbers are the numbers which are divisible by 2. So between 0 and -18 they are saying. देखो अपनी नंबर लाइन देते हैं, 0 तो लेफ्ट साइड चलते हैं. 0, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16. बिटवीन क्या है तो आप 16 पे आके रुक जाएंगे. These are the even integers between -8 and 0, -18 and 0. Next, all the odd integers. This you will write down yourself. Now I am solving fourth sum. Find by what number should -240 be divided to obtain 16. ਦਾ मतलब कि हम -240 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ. -20 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ x ਹੈ, डिवाइड करिए तो आंसर आवे 16. तो आप की करांगे, इनू लिखांगे -240 अपॉन x इक्वल टू 16. तो आप 16 नाल इनू डिवाइड करके चेक करांगे केड़ा नंबर है जिन्हों आप डिवाइड करिए कि अपना आंसर 16 आ जाए. It's 15. देखो दोनों का साइन किया ओपोजिट है तो अपना साइन भी नेगेटिव आऊगा. तो आंसर इज -15. फिफ्थ सम देखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ. ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ 5 डिवाइडेड बाय -1. 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करना है. 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करके कितना आ रहा है 5. दोनों के साइन ओपोजिट है तो अपना साइन भी माइनस च आएगा. हुण अपना ब्रैकेट सॉल्व हो गई है. हुण नेक्स्ट है 125 डिवाइडेड बाय -5. 125 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ डिवाइड करांगे. 120 ਤੇ 5 ਨੂੰ डिवाइड किया कितना आ गया. देखो हमें डिवाइड करके देख लो जे तुहानू कैलकुलेशनस ईजी नहीं लगदियां ना. देखो आंसर आ रहा है 25. दोनों के साइन ओपोजिट है तो साइन माइनस च होगा. सेकेंड पार्ट
169 divided by 13, 26 divided by 2। तो आप सब तो पहला ब्रैकेट्स में सॉल्व करांगे। 169 डिवाइडेड बाय 13, 169 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੈ 13। ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਵਕਤ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਡਿਵਾਈਡ, ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 13, ਤਾਂ 13 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਸਰ। Next is sixth sum, simplify. This is 12 minus 8 plus 27 divided by 2 multiply 8 minus 7. First of all, we will solve the round brackets. First is to solve round brackets, then curly brackets, then close brackets. There are three types of brackets: राउंड, करली एंड क्लोज। तो सब तो पहला राउंड ब्रैकेट सॉल्व करी दी है, उस तो बाद करली करी दी है, फिर क्लोज करी दी है। तो आप ये सब तो पहला करांगे राउंड ब्रैकेट्स में सॉल्व। राउंड ब्रैकेट्स दे विच आपां बॉड मास लगाना है। पहला बॉड मास की हुंदा है BODMAS। दिस मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, दिस मीन्स ऑफ, D means division, M means multiplication, A means addition, S means subtraction। ठीक है, तो आप सब तो पहला M आ रहा है क्योंकि इतने मल्टीप्लाई तो सबट्रैक्शन है, तो M पहला आ रहा है, मल्टीप्लाई करांगे पहला तो ये आ गया 16 माइनस 7, 27, 12 माइनस 8 प्लस 27 डिवाइड, हम ब्रैकेट च माइनस करांगे इन्हों, आ गया 9, 8 प्लस 27 डिवाइड बाय 9 ब्रैकेट क्लोज, 12 माइनस, हम देखो ये प्लस तो डिवीजन का साइन है, पहला डिवाइड आता है फिर प्लस आता है, तो आप पहला डिवाइड करांगे तो ये आ गया 27 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ डिवाइड किया 3, दोनों सेम साइन दे तो प्लस च आंसर आऊगा। तो 12 माइनस, हम दोनों की एडिशन करांगे 11, 12 माइनस 11 इज 1, तो आंसर आ गया 1। ये है सिंप्लीफिकेशन। नैक्सट सम तुम खुद ट्राई करियो। नैक्सट सम बिल्कुल सेम है। नैक्सट है कि MCQs, वो भी तुम खुद ट्राई करने हैं। नैक्सट है ट्रू फॉल्स। ये वन वर्ड क्वेश्चन आते होंगे एग्जाम के, दैट कोशेंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कोशेंट जो दो इंटीजर में डिवाइड करके जो आता है, कोशेंट हमेशा एक इंटीजर होंगे, ये आप दसना है। नहीं, जरूरी नहीं है, डेसीमल्स भी आ सकता है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है इफ A एंड B आर टू अनईक्वल नॉन जीरो इंटीजर्स, दे दोनों इक्वल नहीं है, तो A डिवाइड बाय B इक्वल टू B डिवाइड बाय A होंदा है, मीनस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होंगी, तो करके ये भी की है फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने इक्वल पाया हुआ इन बिटवीन। तो एक्सरसाइज में खुद भी ट्राई करके देखना है, सॉल्व करो। जो कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट जरूर करो, जो वधिया लग्या वो भी कमेंट करो, एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।